وجہ وجود خالق امکان ہے فاطمہ، وجہ وجود خالق امکان ہے فاطمہ، تخلیق کائنات کا عنوان ہے فاطمہ، آقا ہے نور نیر تاباں ہے فاطمہ، ایمان علی تو حاصل ایمان ہے فاطمہ، واجب ہے سیدہ کا رسالت پہ احترام، ایسی بلند رتبہ و ذیشان ہے فاطمہ، حق کی کنیز بنت نبی زوج مرتضیٰ، 11 پسر امام ہیں وہ ماں ہیں فاطمہ، خیر النساء لقب ہے تو ہے حل عطا شرف، ایک اسوہ بہر طبقہ نسواں ہیں فاطمہ، خاتون حشر آپ ہیں روح طہارت آپ ہیں، بضعۃ الرسول دبستاں ہیں فاطمہ، زہرا بطول راضیہ و مرضیہ خطاب، احمد کے گھر میں جلوہ یزداں ہیں فاطمہ، تسبیح فاطمہ کا کرو ورد ہر گھڑی، بخشش کا ہے کوئی تو وہ امکان ہے فاطمہ، شوذب کرشمے جن کے ہیں فردوس و سلسبیل، شوذب کرشمے جن کے ہیں فردوس و سلسبیل، لاریب ایسا نور فروزاں ہیں فاطمہ، رسول پاک محمد کی جسم و جاں زہرا، رسول پاک محمد کی جسم و جاں زہرا، مثال ڈھونڈنے جائیں تیری کہاں زہرا، نبی کی بیٹی ہے اور ایک امام کی زوجہ، اور اب ہے 11 اماموں کی ایک ماں زہرا، کبھی فرشتوں کی صورت کبھی ستارے کی، جھکا ملا ہے تیرے در پہ آسماں زہرا، تیرے لہو کے مقابل شکست لکھی گئی، جہاں جہاں بھی ہوا اس کا امتحان زہرا، ثبوت آیت تطہیر حشر تک کے لیے، حصار دی میں ہے عصمت کی پاس باں زہرا، گیا تھا اور کوئی شام سے مدینے تک، مگر ملے ہیں پاؤں کے نشان زہرا، دلیل رب اولا لکھا ہے، دلیل رب اولا لکھا ہے، قلم نے جب سیدہ لکھا ہے، لکھا ہے وجہ ولائے حیدر، نبی کی وجہ بقا لکھا ہے، وہ جائے سجدہ انبیاء ہے، وہ جائے سجدہ انبیاء ہے، جہاں جہاں فاطمہ لکھا ہے، نہیں ہے ان کا کوئی بھی ثانی، ہر ایک سے ان کو جدا لکھا ہے، جو ان کے در پہ جھکائے سر ہے، اسی کو حق آشنا لکھا ہے، لکھا ہے ام ابیہا ان کو، رسول حق کا کہا لکھا ہے، یہ راضیہ ہیں یہ مرضیہ ہیں، انہیں خدا کی رضا لکھا ہے، مقام سدرہ پہ ہوگا فائز وہ جس نے ان کو پڑھا لکھا ہے، خدا نے واحد قرآن سارا برائے خیر النساء لکھا ہے، برائے خیر النساء لکھا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم،
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ چہرہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں. پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر. پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر. پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں. کاش میں پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے. پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے. میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. کاش میں مہدی دوراں. صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور. صحن کا
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमअरिफ़तिज़ ज़हरा व अजला उयूनना बिबुकाइ अलज़ ज़हरा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अबिज़ ज़हरा व अला बअलिज़ ज़हरा व अला अबनाइज़ ज़हरा व अला बनातिज़ ज़हरा व अला शीअतिज़ ज़हरा व क़ाला इलाहुज़ ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें अपनी नाजिल फरमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब आप लोगों के नसीब में लिख दे। और ये कुर्ब आपका फ़कत दुनिया में ना हो, दुनिया के साथ साथ मरते दम भी ये कुर्ब आपको नसीब हो, और ये कुर्ब आपको हयात बादल ममात भी नसीब हो। यानी जब हम मर के उठेंगे तो ये हमारा अकीदा है कि हर शख्स जो भी मरा है उसने दोबारा बेदार होना है। जिनके यहाँ ये कानून है कि जो मर गया बस ख़त्म हो गया, वो मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद वाले लोग और हैं। हमारे यहाँ मरने वाले का एहतराम भी किया जाता है और मरने वाले को ज़िंदा शुमार किया जाता है, क्योंकि उसके एहसासात सलामत होते हैं। और वैसे भी जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मर जाए वो तो होता ही ज़िंदा है। मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इस दुनिया से चला गया वो मर के ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो शहीद होता है, वो ज़िंदा होता है। एहसास का पे हम बराबर सलामत होते हैं और वो महसूस कर रहा होता है। ये उसके एहसासात इस बात की दलील होते हैं कि जो शख्स मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मर गया वो ज़िंदा होता है। और एहसासात दूसरी बात की भी दलील हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया। जो शख्स मर गया उसने अपने इमाम को नहीं पहचाना, वो जहालत की मौत मर गया। यानी जो जहालत की मौत मरता है इसका मतलब है वो शख्स मर गया होता है, मर गया होता है, ख़त्म हो गया होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। हकीकत कुछ और हकीकत माल, हकीकत मार्फत, हकीकत बका, हकीकत ज़िंदगी मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। इसलिए कहा मासूम अलैहिस्सलाम ने कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी महसूस करना चाहते हैं तो आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मुतवस्सिल रहें। और इसी मुतवस्सिल रहने का नाम मार्फत करार दिया गया है, इसी का नाम बसीरत करार दिया गया है, इसी का नाम पहचान हम लोग कह लेते हैं, इसी को हम शनाख्त कह लेते हैं, और इसी को हम फ़िक्र कह लेते हैं, इसी को हम शऊर कह लेते हैं। इसीलिए जिनके अंदर शऊर ज़्यादा होता है अल्फाज को संजीदा अंदाज में परख तोल कर, माप तोल कर इस अंदाज में अदा करते हैं, शेर कहने लग जाते हैं। क्योंकि शेर और नज़्म में भी थोड़ा फ़र्क है। हर सच और झूठ को एक इंसजाम के अंदर, एक तरतीब के साथ, एक अंदाज़ खूब के अंदर, एक अच्छे अंदाज में, तरतीब और मुरत्तब अंदाज में पेश कर देने का नाम शेर होता है। इसमें सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन नज़्म ये होती है मुनज़्ज़म होती है, हर एतबार से मुनज़्ज़म होती है। सच्चे होने के एतबार से भी और वज़न और काफ़िये के एतबार से भी ये सच पर दलालत करती है। इसलिए कहा गया कि मासूम अलैहिस्सलाम के लिए नज़में कहने वाले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज़्ज़त पा जाते हैं। हाँ, शेर और शायरी जो होती है दिल की ज़बान होती है, शऊर से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए शायर को शायर भी कहा जाता है, क्योंकि अपने एहसासात को, अपने दर्क को, अपनी फ़हम व फ़रासत को वो अपने अच्छे अंदाज के अंदर पेश कर दिया करता है। इसीलिए उसे शायर कहा जाता है। जो शायर होता है वो अपने शऊर को लोगों तक मुंतकिल करता है। कोई शायर ऐसे होते हैं जो हिदायत की तरफ लेकर जाते हैं, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप के ख्यालात को फ़कत बयान करते हैं, उन्हें हक़ और ना हक़ का पता नहीं होता। इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि शायरों की इत्तबा नहीं करनी है,
क्योंकि उनमें से अक्सर जो हैं वो समझ बूझ रखने वाले नहीं होते, लिहाजा अक्सरियत का इतलाक थोड़े लोगों पर भी हो जाता है। इसीलिए अक्सरियत जो होती है उसके पीछे चलने से मना किया गया है। इसीलिए कहा गया कि हक को पहचानना है, हक वहां पे होगा जहां पे अहले हक होंगे, और हक और अहले हक की निस्बत ऐसी है जहां जहां पे हक जाएगा वहां पे अहले हक होंगे, और जहां पे अहले हक होंगे वहां पे हक पीछे पीछे चलता हुआ उनके पीछे आ जाएगा। इसीलिए मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें मार्फत के लिए कहा है। इसी मार्फत की कड़ियों के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस मार्फत को हर अंदाज से परखें, तोलें, मापें और दूसरों तक पहचानने और पहुंचाने की कोशिश करें। इसी मार्फत के अंदर हमारे लिए शुक्र है। शुक्र का सिलसिला कहाँ से आया हमारे पास? शुक्र का सिलसिला आया हमारे पास नेमत के ज़रिए से। जब नेमत है हमारे पास तो हमारे लिए शुक्र करना उसका ज़रूरी है, और शुक्र को करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो शुक्र किया करता है उसके ऊपर नेमतें बढ़ जाती हैं। शुक्र के अंदाज क्या क्या हो सकते हैं, शुक्र किस किस तरीके से हो सकता है? शुक्र का ताल्लुक़ फ़कत ज़बान से है या दिल से भी है या हमारे आमाल से भी है या हमारे जवारेह से है या हमारे जवानेह से है? शुक्र का ताल्लुक़ किस चीज से है? शुक्र हर उस चीज से मुर्तबित हो जाता है जो अपने होने के एहसास को आसान अंदाज में बयान करने का सबब हो। सादा अल्फाज में कह देता हूं कि शुक्र क्या है? शुक्र यह है कि जो भी अल्लाह ने दिया है, एक तो उसका जबान से शुक्र किया जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है, यानी एहसास है नेमत का, उसकी नेमत का एहसास करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दिल माइल हो जाना, यह भी शुक्र की एक किस्म है। दूसरा शुक्र यह है कि अल्लाह ने जो आपके ऊपर नेमतें अर्जानी फरमाई हैं, अपनी नेमतें आपके ऊपर नाजिल फरमाई हैं, उनको आप लोग आकर अपने दिल के अंदर मकाम दें, और दिल के अंदर मकाम ऐसे दें कि उसका जो भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आपके बदन से वाबस्ता हैं, आपके घर से वाबस्ता हैं, आपके अजीज़ अक़रबा से वाबस्ता हैं, उनका अच्छा इस्तेमाल करें। माँ बाप का शुक्र अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरीके से है कि माँ बाप का एहतराम किया जाए। बहन भाइयों का शुक्र ये है कि बहन भाइयों का एहतराम किया जाए, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र आपके अच्छे घर का इस तरीके से है कि उसके अंदर ज़िक्र खुदा किया जाए, उसके अंदर नेमात को इस तरीके से रखा जाए कि तज़यी ना हो, ज़ाया ना हो जाए वो नेमतें। और आपके बदन का शुक्र ये है कि इसे हलाल में इस्तेमाल किया जाए। आँखों का भी इसी तरीके से शुक्र है, कानों का भी इसी तरीके से शुक्र है, और इसी तरीके से ज़बान का भी शुक्र है। और ज़बान का शुक्र यह है कि ज़बान को अल्लाह की हम और उसके औलिया की मार्फत को बयान करने में इस्तेमाल किया जाए, ना ये कि हमारे मुंह में जो आया कहते चले जाएं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि शुक्र को इस अंदाज में करें और इस तरीके से बयान करें। अगर एक जवाने होते हैं, एक जवारे होते हैं। जवाने वो होते हैं जो हमारे दरूने कल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं, अंदरूनी ख्यालात, एहसासात, हमारे दिल का एहसास, हमारी फ़िक्र का एहसास, हमारी आँखों से दिल के अंदर, दिमाग के अंदर पहुंचने वाले नताइज, यह है जवाने। और जवारे क्या हुआ करते हैं? हमारे इर्द गिर्द के हाथ, पांव, टांगे, कदमों को इस जगह पे चला कर लेके जाएं जहां पर नेकी हो, जहां पे भलाई हो, जहां पर खूबी हो। इसी तरीके से हाथ, आंखें, नाक, कान, समात, बसारत, और इसी तरीके से जायका, हर चीज़ को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। ये शुक्र आया कहाँ से? ये दिन चल रहे हैं शुक्र के, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हमारे ऊपर नाजिल हुई है, और उस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने कौसर का मिज़दाक करार देकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नाजिल फरमाया है। और यह हुबूत नेमत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा के घर के अंदर लोगों के लिए बहुत मुसर्रत का सबब है। अहले मदीना के लिए बहुत मुसर्रत का सबब है, अहले मक्का के लिए बहुत मुसर्रत का सबब है। ननियाल है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में, और मक्का के अंदर ददियाल है। अभी ददियाल के पास ही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग आकर नबी करीम को बे औलाद होने का एक यानी तानाजनी करने लगे, ताने देने लगे। जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने वापस ले लिया था। अब रसूल करीम की औलाद जो ना बची, बेटा कोई नहीं बचा, तो अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शिकवा तो ना किया, लेकिन लोगों के अल्फाज का ज़र्रा बराबर जो एहसास लोगों के दरमियान था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हर नेमत के ऊपर राज़ी ब रज़ा थे, लेकिन जो लोगों की वजह से इर्द गिर्द का माहौल बन रहा था, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के लिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ये सूरत ने जिस तरीके से सैयदा की वजूद की गवाही दी, इसी तरीके से इस सूरत ने कुरान मजीद की हक्कानियत की भी गवाही दी। यानी जो चीज सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस से वाबस्ता हो गई, उसने दीन को भी बका दी, उसने दुनिया को भी बका दी, उसने रसूल को भी बका दी, रिसालत को भी बका दी, उसने इमामत को भी बका दी, इमाम को भी बका दी। यानी ये है, हकीकत है और ये महवर है, मरकज है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का दरिया है हमारे दरमियान। और शुक्र के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमाया कि हमें शुक्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। और शुक्र करने के लिए वश्कुरूली वला तकफुरून, शुक्र नहीं करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, कुफ्र हो जाएगा। कुफ्र होता है इनकार के माने में, काफिर वही होता है जो इनकार करता है। काफिर एक हिसाब से ये जो किशावर्जी करते हैं या जो किसान होते हैं उन्हें कहा जाता है काफिर, क्योंकि वो दाने को जमीन के अंदर छुपाते हैं। इसलिए कहा कि छुपाना नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो, कुफ्र ना करो। कुफ्र ये है कि जिस भी चीज का गलत इस्तेमाल कर दिया, अल्लाह का कुफ्र है। और इसी एतबार से कहा कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरूल्लाह, अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ, उसका शुक्रिया अदा करो। वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पर नेमतें फरावान कर देगा, और अगर तुम नेमतों का इनकार करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा। वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर, अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। इस कमी को हमें पूरा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने वक्त दिया है तो हमें वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल क्या है? अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना चाहिए। उन्हें हमें अक्ल दी, अक्ल का इस्तेमाल करें, मार्फत के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्फत के लिए 1 घंटा 70 साल की इबादत से बेहतर है। लिहाजा मार्फत के लिए एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ जो हदीस मासूम अलैहिस्सलाम से है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिहारुल अन्वार में, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खलक़ खल्क़न मिन रहमति, अल्लाह तबारक व तआला ने एक खल्क़ को खल्क़ किया अपनी रहमत से। खलक़हुम मिन नूरिही, उन्हें खल्क़ किया अपने नूर से। और क्या कहा? व रहमतिही ले रहमतिही व रहमतुहु ले रहमतिही, और उनकी रहमत अपनी रहमत से खल्क़ की है। फ़हुम ऐनुल्लाहि नाज़िरा, वो अल्लाह ताला की देखने वाली आँख है। व उज़्नुहु सामिआ, और उसके सुनने वाले कान हैं। क्या कहा? वलिसानुहु नातिक, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़बान अल्लाह की बोलती ज़बान है। फ़ी खल्क़िही, अल्लाह की खल्क़ के अंदर जो बोलता है अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए से है। बिइज़्निही, उसके इज़्न से बोलते हैं, क्योंकि इनकी मंशा अल्लाह की मंशा के बरअक्स नहीं है। व उमनाहु अला मा अंज़ला मिन मज़रिन व नज़र, और अल्लाह तबारक व तआला की हर चीज़ जो खुश्क तर, अच्छा बुरा जो भी नाजिल हुआ है उसके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमीन है ये। और क्या कहा? वह हुज्जतुन फीहिम, और ये अल्लाह की हुज्जत है लोगों के दरमियान। यमहुस सय्यआत बिहिम, इनकी वजह से अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को मिटाता है। बिहिम युदफाउ ज़ियम, इनकी वजह से बुराइयां पाक हो जाती हैं, दफा हो जाती हैं। व बिहिम युनज़लुर रहमा, इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। व बिहिम युहयी मैता, इन्हीं के सबब से अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। व बिहिम युमीतु हय्यन, और इन्हीं के सबब से अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स मर गया होता है उसे जिंदा कर देता है। व बिहिम युब्तला खल्क़ुहु, और इन्हीं की वजह से लोगों की आजमाइश हो जाएगी। अब पता चला ये पुले सिरात, यही अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और कहा व बिहिम युब्तला खल्क़ुहु, और इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला की खल्क़ की आजमाइश की जाएगी। व बिहिम युक़ज़ा फ़ी क़ल्बिही क़ज़िया, और इन्हीं की वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से कोई भी वाक़या होता है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से होता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमत, वो रहमत, वो बरकत है हमारे दरमियान, जो कि दुनिया और आखिरत के अंदर हमारे लिए बख्शिश का सबब है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता की, इनका शुक्रिया क्या है कि मार्फत हासिल की जाए। और इस मार्फत का एक जुज़ ये भी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसा किसी को भी नहीं कहना है। कोई कहे कि वो फलान है, फलान है, फलान है, हर कोई अपने घर के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसा कोई भी नहीं हो सकता। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मिस्ल किसी को करार देना इतना बड़ा गुनाह है कि बख्शिश कोई नहीं है। लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहा कि
नहनु अहलल बैत ला युकासु बिना अहद, कहा कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम, हमारे साथ किसी को भी क्यास नहीं किया जा सकता। फ़ीना नुज़िल अल कुरान, हमारे हक में कुरान मजीद नाजिल किया गया है। वफ़ीना मादिन रिसाला, और हमारे अंदर मादिन रिसालत, रिसालत की कान, वही की कान हमारे दरमियान है। और इसी एतबार से मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के इरशाद है, फरमाया या जाबिरो इन अहलल बैत अलैहिमुस्सलाम ला युकासु बिना अहद, मन कासा बिना अहदन मिनल बशर फ़क़द कफ़र। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ किसी को भी क़ियास नहीं करना है, किसी को हमारा मिस्ल करार नहीं देना है, किसी को हमारे जैसा करार नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? किसी को भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जैसा करार देना, किसी को भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मिस्ल क्यों नहीं बनाना है? कहा कि जिस शख्स ने हमारे से किसी की बसावत की, किसी को हमारे बराबर शुमार किया, हम अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी शख्स ने भी इन आम लोगों के बराबर शुमार किया, तो क्या होगा? ये अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कुफ्र लिखा जाएगा। जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के बराबर किसी को भी करार देगा, कुफ्र हो जाएगा। लिहाजा इस कुफ्र से बचने के लिए हमें चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत का इकरार करें। इसीलिए कहते हैं लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फातिमा, लैलतुल क़द्र का तर्जुमा फातिमा, लाफता के खुदा का पता फातिमा। जब मेराज के दिल में ख्वाहिश हुई, जब मेराज की दिल में ख्वाहिश हुई, तेरे घर आ गए मुस्तफ़ा फातिमा। तुम भी पर्दे में थे, कुछ तो वाज़ेह करो, तुम भी पर्दे में थे, कुछ तो वाज़ेह करो। और मेराज में क्या हुआ फातिमा? बन रहे हैं खदोखाल अब्बास के, बन रहे हैं खदोखाल अब्बास के, हैं मुसल्ले पे महवे दुआ फातिमा। जाके देखो लिखा है ये तारीख में, ये जाके देखो लिखा है ये तारीख में, किससे होकर गई है खफा फातिमा। हक की तारीफ लिखनी थी एक लफ्ज़ में, हक की तारीफ लिखनी थी एक लफ्ज़ में, बस तकल्लुम ने फिर लिख दिया फातिमा, बस तकल्लुम ने फिर लिख दिया फातिमा। यानी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को राज़ी रखना है। सैयदा को राज़ी किस तरीके से रखते हैं? जिसको इसी को भी आपने राज़ी करना हो ना, यकीन जानिए औलाद हक गो हो तो औलाद का एहतराम करेंगे तो माँ बाप यकीनन खुश होंगे। इसीलिए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद का एहतराम करें, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वालों का एहतराम करें, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के से मुताल्लिक़ चीज़ों का एहतराम करें। और हमें चाहिए इसी एहतराम को अल्लाह ताला के बारगाह में पेश करें। और एहतराम इसका ये है कि उनकी हुज्जत का इंतज़ार करें और कहें अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।